Good morning students and welcome back after your Diwali vacations. I hope you have enjoyed your vacations. Now let's start with our portions. The plate of gold. This is our first lesson of unit 3, 3.1, the plate of gold. One day there fell in a great Banaras temple court a wondrous plate of gold whereon these words were read, to him who loveth best a gift from heaven, their head. The priest made proclamations at the midday hour. Each day let those assemble who are virtue dear. The right of heaven's gift, the best, and we will never hear the deeds of mercy done and so adjured. The news ran swift as light, and soon from every quarter came nobles and munshis, hermits, scholars, holy men, and all renowned for gracious or for splendid deeds. Meanwhile, the priest in solemn council sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven. So far a year the claimants came and went. At last, after a patient weighing of worth of all, the priest bestowed the plate of gold on one who seemed the largest lover of the race, whose whole estate within the year had been parted among the poor. This man, all trembling with his joy, advanced to take the golden plate, when lo, at his finger's first touch, it changed to basest lead. All stood aghast, but when the hapless claimant dropped it clanging on the floor, heaven's guerdon was again transformed to shining gold. And well for them it was, it gold be charity for every pilgrim to the temple gate, praise God. That lot might thus approve itself before the test, and so coins rained freely in the outstretched hands. But none of those who gave so much as turned to look into the poor sad eyes of them that begged. And now the second year had almost passed, but still the plate of gold by whom thirst was turned to lead. At length there came a simple peasant, not aware of that strange contest of the gift of God, to pay a vow within the temple. As he passed along the line of shriveled beggars, all his soul was moved with him to sweet pity, and the tears welled up and trembled in his eyes. Now by the temple gate there lay a poor, sore creature, blind and shunned by all. But when the peasant came and saw the sightless face and trembling maimed hands, he could not pass, but knelt and took both palms in his hand and softly said, "Oh, thou my brother, bear thy troubles barely. God is good." Then he arose and walked straightway across the court and entered where they wrangled of their deeds of love before the priest. A while he listened sadly then and turned away, but something moved the priest who held the plate of gold to beckon the peasant. So he came not understand and obeyed, and stretched his hand and took the scared vessel. Lo, it shone with thrice its former lustre, and amazed them all. "Son," cried the priest, "rejoice, the gift of God is thine. Thou lovest best." And all made answers, "It's well." And one by one departed. But the peasant knelt and prayed, bowing his head above the golden plate, while over his soul, like morning, streamed the love of God. By John Henry Lake Hunt. Okay, this is the poem. It's a long poem. It is about the things we people mostly do. हम दिखावा करते हैं मोस्टली. कुछ लोगों को दिखावा करने की आदत होता है कि जो चीज़ें वो करते हैं
लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ हम बहुत कुछ लोगों के लिए करते हैं, किसी की खुशी के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तो ये भी कुछ पोएम जो है ये कुछ ऐसे ही है, जहाँ पे इस पोएम में हमने जो रीड किया उससे हमें पता चलता है कि ऐसे कुछ लोग मिलते हैं, लोग हैं जो दुनिया में, जो लोगों को ऐसा दिखावा करते हैं कि हम दूसरे के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं उनके लिए। तो ऐसे तो इन दिस पोएम इट इज सेड, एक ऊपर से ए प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम द हेवन। ओके, वन डे व्हाट हैपेंड, देयर फेल ए ग्रेट बनारस टेम्पल कोर्ट में एक वंडरस प्लेट ऑफ गोल्ड जमीन पे गिरता है। वेयर ऑन दिस वर्ड्स वेर रिटन, उसमें कुछ शब्द लिखे हुए थे कि जो इंसान सबसे ज़्यादा दूसरे को प्यार करता है, जिसकी सेवा करता है, ऐसे लोगों के ये गोल्डन प्लेट जो भगवान के द्वारा आई है वो उनको मिलेगा। द प्रीस्ट मेड प्रोक्लेमेशन, जब ये वहाँ पे टेम्पल कोर्ट में गिर गए तो प्रीस्ट, वहाँ के जो प्रीस्ट थे, उन्होंने सबको बताया। प्रोक्लेम किया मतलब इज सेड टू एवरीवन, सी अ पब्लिक स्टेटमेंट। प्रोक्लेमेशन मतलब सार्वजनिक तौर पे ये वो ऐलान करते हैं कि वहाँ से एक आसमान से, हेवन से गॉड ने गिफ्ट भेजा है उस इंसान के लिए जो अपने गरीबों को, जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो बहुत कुछ किया है, उसको ये ऐसे गिफ्ट मिलेगा करके। सो ही मेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ दैट थिंग। Each state let those assemble for virtue deep their height of heaven's gift the best। तो हमेशा वहाँ पे रोज असेंबली होने लगे, लोगों इकट्ठा होने लगे, और उस जो प्रोक्लेमेशन जो प्रेस ने दिया उसके लिए वहाँ पे सब दावेदार आ गए कि वो कहने लगे कि हमने बहुत कुछ लोगों के लिए किया है, तो इसका हकदार हम। तो हमेशा इस तरह भीड़ वगैरह बनी रहती थी, और हर कोई अपना ये आजमाना चाहता था वो प्लेट ऑफ गोल्ड हासिल करने के लिए। तो ये जो खबर है, जो द न्यूज़ हैंड स्विफ्ट एज लाइट एंड सून फ्रॉम एवरी क्वार्टर केम द नोबल्स एंड मुनी। तो ये जो खबरें हैं, जो है आसमान से एक गोल्ड प्लेट गिरा है जो भगवान के द्वारा आया है, तो ये बात इस तरह आग की तरफ फैल गई, और कोने कोने से लोग आगे आने लगे। नोबल्स, मुंशीज, हर्मिट्स, स्कॉलर्स, होलीमैन सब वहाँ पे इकट्ठा होने लगे। अपने आप का व्हाट यू कैन से आजमाना चाहते थे, वो देखना चाहते थे, और ये दिखाना चाहते थे कि वो सबसे ज़्यादा लोगों की सेवा किए, और वो उसके हकदार वो लोग हैं। Meanwhile, the priest of the solemn council sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven। तो जो प्रीस्ट वहाँ पे थे वो सारे लोगों की बातें सुनने लगे, उनकी बात सुनने लगे कि उन्होंने क्या क्या किया, ये सब बता रहे थे। तो प्रीस्ट वो सारे बातें सुनने लगे। जिस तरह साल बीत गए पर वो किसी को वो गोल्डन प्लेट नहीं मिला। एट लास्ट प्रीस्ट इस तरह बहुत इंतज़ार करते करते एक इंसान वहाँ पे आता है। द प्रीस्ट bestowed द प्लेट ऑफ गोल्ड, सी bestowed the plate of gold on one who seemed the largest lover of the rest। तो बहुत इंतज़ार के बाद, लगभग साल होने के बाद, एक ऐसा इंसान आया जो उसने अपने सारे धन संपत्ति लोगों में बांट दी थी, गरीबों में मगर बांट। द होल स्टेट विद इन द ईयर एंड हैड पार्टेड अमंग द पुअर। यानी अपनी जो भी संपत्ति, जो भी दान कर उन्होंने गरीबों के पर किया था। तो प्रीस्ट को लगा ये सही इंसान है जिन्होंने दूसरों का तकलीफ समझ लिया और उन्होंने अपने सारे संपत्ति और गरीबों में वगैरह बांट दी। दिस मैन ऑल ट्रेमलिंग विथ हिज जॉय एडवांस टू टेक द गोल्डन प्लेट। जब उसको पता चला कि हाँ इस प्लेट का दावेदार मैं हूँ, तो बहुत खुशी से उछल पड़ा और वो वहाँ सामने आया गोल्ड प्लेट लेने के लिए। As soon as he touched the plate fell down। वो प्लेट नीचे गिर गया, उसके हाथ लगते ही वो धातु का बन गया, लेड के रूप में कन्वर्ट हो गया, और वो उसके हाथ से गिर गया। जैसे गिर जाता है वो फिर से टर्न हो जाता है गोल्ड में। तो व्हाट इट वाज दैट, वो सिर्फ दिखावा कर रहा था लोगों को सेवा करने की। एक्चुअली वो मन से उतना ये नहीं था, लोगों के लिए पीती या उसमें ये नहीं था, वो सिर्फ दिखाना चाहता था। और अपने जैसे एक लोग जब
खुश होते तो उनकी ये करते, तारीफ़ करते, तो अपनी तारीफ़ों का ये था वो, तो वो सिर्फ अपने तारीफ़ के लिए या लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के लिए वो ऐसे सब सेवाएं वगैरह करता था। मन से ऐसा कोई, उसके मन में ऐसे कोई ये नहीं है गरीबों के लिए। तो इसकी वजह से क्या, जैसे ही उसने छुआ उस प्लेट को, दैट टर्न इनटू अ लेड। अगेन इट वेंट सो, इस तरह काफ़ी दिन ऐसे बीत गए। अगेन द नेक्स्ट ईयर what happened, see here, for every pilgrim up to the temple gate praise God that love mighty thus have proved itself before the test। इस तरह बहुत सारे लोग आए उधर और अपना टेस्ट वगैरह हुआ। एंड सो कॉइन्स रेन फ्रीली, और लोग क्या करते थे, जब रिच पीपल व्हाट दे यूज्ड टू डू, जिनके पास पैसे वो क्या इस तरह लोगों को बांटने लगे, पैसे दिखाना चाहते थे कि वो लोगों की, गरीबों की सेवा करें, उनके लिए उनकी तकलीफ़ को वो जानते, समझते, महसूस करते हैं और उनको दर्द है इस बारे में। इस तरह अपना ये करने के लिए सबको, बहुत सारे लोग वहाँ पे क्या हुआ, पैसा इस तरह गरीबों में बांटते थे। इसीलिए कहा जाए सो कॉइन्स रेन फ्रीली इन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, इस तरह वो पैसे बांटते थे। And none of those who gave so much has turned to look into the poor eyes of them that beg। पर कोई भी उस वहाँ पे जो गरीब वगैरह, बेगर्स वगैरह, तो उनकी तरफ, उनकी आँखों की तरफ नहीं देखते थे, ना ही समझने चाहते थे उनको एक्चुअली क्या चाहिए उन गरीबों को। सिर्फ वो अपने आप को ये दिखाना, लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि वो जो गोल्ड प्लेट है उसके दावेदार वो है, उनको मिलना चाहिए। सिर्फ इसीलिए, पर कोई भी किसी भी गरीब का दर्द नहीं जानना चाहते, उनके हाथों में झाँक कर उनको क्या चाहिए, उनके क्या दर्द है वो नहीं देख रहे थे। And now the second year had almost passed, but still the plate of gold by whomever touched was turned to lead। तो इस तरह साल दूसरा साल भी लग गया। What happened? Whoever tried to touch that gold plate, it turned into lead। मतलब इसका वाकई जो सही दावेदार है, जो सही मानने में जो गरीब का तकलीफ जानने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। At length there came a simple peasant। इसके बाद क्या हुआ, एक सिंपल peasant, वहाँ पे एक गरीब व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। नॉट अवेयर ऑफ दैट स्ट्रेंज कंटेस्ट, उसको कुछ उस बारे में पता नहीं था कि इतने साल भर से वहाँ पे क्या हो रहा है, वो इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं था, वो वहाँ से गुजर रहा था। नॉट अवेयर ऑफ दैट स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट फ्रॉम द गिफ्ट ऑफ गॉड टू पे द वॉर विद इन द टेम्पल, एज ही पास्ड अलॉन्ग ए लाइन ऑफ shriveled beggar, all his souls was moved within him to sweet pity, and the tears welled up and trembled in his hand। तो वो जो ये गरीब व्यक्ति था, उसको कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे बनारस में जो टेम्पल में गॉड ऑफ गिफ्ट वहाँ पे मिलने वाला है, उनकी कोई खबर नहीं थी। एंड ही वॉज जस्ट पासिंग एवर। जब वो गुजर रहे थे उनको वहाँ पे बेगर दिखाई दिया, एक जो बहुत सी ट्रिंकल्ड अप हुए हैं, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, आँखों में बहुत सारा दर्द है, नमी है, आँखें नम है तकलीफ से। When he saw all that things, तो उसे काफ़ी बुरा लगा उस गरीब के लिए, उस बेगर के लिए। तो उसने क्या किया, all his soul was moved within him to sweet pity। जैसे ही उस व्यक्ति ने उस बेगर को देखा तो उसको मन भर आया, ये देख के उसको उस व्यक्ति के पर दया आने लगी। एंड द tears welled up and trembled in his eyes। उसके आँखें नम हो गए, उसको उस बेगर का दशा देख के उसको बहुत तकलीफ हुई, इसके आंखें नम हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। नाउ बाय द टेम्पल गेट देयर ले है पुअर सोर क्रीचर ब्लाइंड एंड शन्ड बाय ऑल, बट व्हेन द peasant केम एंड सॉ द साइटलेस फेस एंड ट्रेम्बलिंग could not pass but knelt and took both palms in his hand। वहाँ पर जो बेगर था, जिसका आंखें उसको नज़र नहीं आ रहा था, वो देख के उसे बहुत तकलीफ़ हुई। वो क्या किया, कोई उस ऐसे भिखारी को, रिंकल बिगर्स जो वहाँ पे पड़ा था, कोई छूते नहीं ऐसे लोगों को। तो ये इंसान को इतना बुरा लगा कि उसके हाथ, उस बेगर का हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए उनको समझा रहे थे कि गॉड बहुत ग्रेट है, अपनी इस जो तकलीफ़ है उससे आप डरो मत। ओ दो Then he arose and walked straightway across the court and entered where the triangle of deeds of love before the
तो इस तरह गर्भ को सहलाते हुए तसल्ली देते हुए कि सब चीज़ें तकलीफ़ यहाँ से तुम्हारे ख़त्म हो जाएगी, डरो मत, भगवान बहुत अच्छे हैं, वो अपने लोग आप जैसे लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, आपका भी आगे चल के अच्छा होगा। इस तरह तसल्ली देते हुए ही देन वॉक्स टू द टेम्पल वेयर ही सीज दैट, वहाँ जाके वो प्रीस्ट से मिलता है। तो वह देख के लोगों की भीड़ देख के ही वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट वॉज गोइंग ऑन। लोग एक गोल्ड प्लेट के लिए इतने ये कर रहे थे एंड ही वॉज टोटली शॉक। गरीबों का तकलीफ से उनको कोई वास्ता नहीं, बस उनकी एक चाहत थी कि वो प्लेट उनको मिल जाए ताकि वो सबको ये बता सके कि हाँ, मैंने वाकई में बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने बहुत तकलीफ़ वाले लोगों को मैंने सब कुछ दिया है मेरी ज़िंदगी में, मेरे पास जो कुछ था। तो इसी को ही वॉज टोटली शॉक्ड एंड वो मुझे इस बात को नहीं काफ़ी बुरा लगा एंड ही जस्ट ट्राई टू वॉक हर फ्रॉम दैट टेम्पल। ये सब देख के वो मंदिर से वहाँ से गुजरने की कोशिश करे। तब प्रीस्ट ने उन्हें देखा और वो जो प्लेट ऑफ गोल्ड है उसके हाथ में ही जस्ट गिव इट टू इन हिज हैंड एंड दैट प्लेट ऑफ गोल्ड वॉज शाइनिंग वेरी ब्राइटली। जैसे ही इस गरीब व्यक्ति के हाथ में ये जो मिला, प्रीस्ट ने दिया, वो चमकने लगा। इसका मतलब क्या है, वाकई इस व्यक्ति को गरीबों के प्रति एक फीलिंग से उसकी अंतरिम दिल उसको होता है गरीबों को देख के, और फीलिंग से उनके लिए कुछ करना चाहता है वो ये व्यक्ति, और वाकई इसमें दया की ये है। इस टोटली अ गुड पर्सन, जिसे किसी और की तरह दिखावा नहीं कर रहा है। और इस this shows that he was the right person to have the gold plate of gold which fell from the heaven, which was given by the God। तो इससे वाकई क्या पता चलता है हमें, कोई ज़रूरी नहीं है कि लोगों को हमें क्या बड़ी बड़ी कुछ चीज़ें करके दे। जैसे अपने पास पैसे है तो उनको कपड़े या ये कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें करके दे, दिखावा कर रहे हैं कि हाँ हम वाकई क्या कर। एक आपकी अच्छी बोल, एक तसल्ली वाला बोल और एक दर्द जिसके लिए फीलिंग्स अगर वो हो, इतनी ही भी थोड़ी सी बात आप अच्छे से कर भी दो तो ये भी काफ़ी होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में आप कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें उनको करके दो। हाँ, ये गरीब है उसको घर दिलवा दे, अच्छा कपड़े दिलवा दे, अच्छा खाना दिलवा। आपका जो तसल्ली वाला बोल है, एक प्यार भरा बोल है, एक एहसास है, फीलिंग्स है, ये भी उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो अब it's not at all necessary that you have to do some big deeds and all। एक छोटी सी आपकी छोटी सी प्यार भरी बातें और प्यार भरी बोल इनके लिए काफ़ी हो जाता है। इससे आपको क्या पता चलता है, वाकई हम रियली यू केयर फॉर दैट पीपल एंड अंदरूनी आपकी इच्छा है कि आप उनके लिए कुछ करें। दैट इज़ ऑल इन दिस पोएम। आई होप यू गॉट दिस पोएम वेरी वेल। Bye, see you in the next lectures. See, here are some of the assignments given to you that you have to do. Okay, bye, see you and meet you in the next lecture.